मैं हूं आलोक यादव और आप जुड़े हैं ईपीएफओ लाइव में। आज का लाइव सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये हम बात करेंगे नए इनिशिएटिव्स की। इन इनिशिएटिव में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर रमन धनशेखर। रमन धनशेखर साहब आरपीएफसी 1 फाइनेंस डिपार्टमेंट ईपीएफओ हेड ऑफिस। हमारे साथ हैं मिस सुरजीत चौधरी आरपीएफसी 2 ईपीएफओ हेड ऑफिस से फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आज के विषयों पे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आज के टॉपिक्स क्या हैं। आज का पहला टॉपिक है करेक्शन इन मेंबर प्रोफाइल। आज का दूसरा टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। और आज का तीसरा टॉपिक है डीलिंकिंग ऑफ मेंबर आईडी फ्रॉम यूएन। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने गेस्ट श्री रमन धनशेखर जी से कि हमको बताएं कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रोसेस में, उन प्रोसेस में जिनसे कोई भी मेंबर अपने प्रोफाइल में कोई करेक्शन कर सकता है, यानी उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका सेक्स, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग, नेशनैलिटी। इन सब चेंजेस के लिए ईपीएफओ हेड ऑफिस ने क्या चेंजेस किए हैं सिस्टम में और कैसे इनको आसान बनाया है जिससे कि आप घर बैठे बहुत आसानी से इन चेंजेस को कर पाएं। तो हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन और आमंत्रित करते हैं श्री रमन धनशेखर जी को टू प्लीज स्पीक ऑन correction in member profile in EPFO records, the new process. Namaskar again. Shushwagatam, Vanakkam. So this हर मेंबर का डेटा हमारा ऑफिस में, हमारा रिकॉर्ड्स में एक प्रोसेस में आता है एंड हमारा एक्सपीरियंस में हमने देखा है वो डेटा मेनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट द करेक्ट डेटा। सो एक बार डेटा आ गया, सपोज डेटा हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द फाइनल रिकॉर्ड्स एंड ईपीएफ रिकॉर्ड्स में ये डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया, देन इट बिकम्स अ बिट problematic when the member applies for any kind of benefit because the data will be mismatched. So there was a process of joint declaration because the data is being submitted to EPFO through the employer, and since the data needs a correction, so there will be a process of joint declaration where the member and the employer, both of them will file a document saying that this is the wrong data and this is the right data, and along with that substantiated with some documents. And it is a manual process because it is going to come to office in a physical mode. Then after that we have to verify the documents and it will be again approved. After some time what we have done is we have linked this particular process with Aadhaar. So Aadhaar का जो भी data है, that is name, date of birth and gender. These three data we matched with the Aadhaar data so that once that data gets matched, then automatically online में member can correct it. So member request, उनका member portal में he will file a request. That request will go to the employer. From the employer it will come to the office and office will approve at various levels. This process has gone into a lot of delay and lot of grievances. And in addition to these three parameters, there might be other parameters like date of joining, date of leaving, there might be father's name, mother's name, spouse name, lot of confusion is there. So there was a thought that we should make all these documents, all these parameters in online. So we have ventured and we have made all these parameters online. We have issued a standard operating procedure of 32 pages in very elaborately we have explained. But after that, while implementation, again the process, it remained a bit cumbersome and lot of inputs have been received that it takes a lot of time both for the member profile as well as for the officers to approve. So in order to streamline the process, we have brought this new simplified version where
only one page में we have explained the entire process, and we have also categorized the entire request into 3 categories: category A, category B and category C. कैटेगरी ये है जो केसेस है मेंबर का यूएएन ने फर्स्ट टाइम आधार बेसिस में जनरेट हुआ है 1/10/2017, दैट इज 1 October 2017 के बाद whatever UAN got generated based on Aadhaar, that cases member themselves can log in into the member portal and execute the corrections. Except in few cases where there might be some mismatches, like contributions are there, where there is a nationality को change करना है from international worker to Indian. In very few cases it might require to go to the employer. Otherwise the circular is here. 16th January we have issued this circular. Very clearly we have issued. इसमें other than just 3 parameters, all parameters employee himself, member himself can approve. एक है nationality है, वो है international worker का nationality से Indian को change करना है या दूसरा international worker को change करना है तो वो ऑफिस में आ जाएगा. दूसरा है date of joining में कोई change है और वो contributions जो भी आया है उसमें mismatch है, that case में it will come to office. And similarly date of leaving also contributions से mismatch है तो वो भी it will come to office. And in case reason of leaving में भी कोई problem है तो it will come to employer, it will not come to office. This is category A. Category B में ये universal account number बोलता है UAN, that is generated before 1 October 17 but आधार का validation subsequently हो गया. इस केस में भी हमने employee को पूरा self we have given him self kind of a facility where he can apply online, but it will not come to office, it will come to the employer level mein most of the cases will be approved. Only in few cases it will come to the office and office will approve it. This is the second category B. Category C mein where the member does not have a UAN or there might be a possibility where member का UAN है मगर आधार का सीडिंग नहीं हुआ है या मेंबर डिजीज़ हो गया, उनका फैमिली करना है, ये पूरा फिजिकल में ही आएगा क्योंकि आधार सीड नहीं हुआ तो ऑनलाइन क्लेम तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट मेंबर पोर्टल कैन नॉट बी एक्सेस तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट तो नहीं आएगा. तो इन दैट केसेस फिजिकल एप्लीकेशंस दे विल बी सबमिटिंग इट. मेंबर है तो मेंबर विल सबमिट द फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन टू द एम्प्लॉयर विल साइन इट एंड आफ्टर दैट इट विल कम टू द ऑफिस एंड ऑफिस विल वेर एवर मेंबर नहीं है, डिजीज है तो then office can always upload that. If member है, member can give the joint declaration to the employer and employer will upload it and automatically it will be approved. So 95% of the total cases will come in this categories where member and employer themselves can approve it. Only 5% it might come to the office. So by this it will be very fast. And whatever minor mistakes it can be corrected and no documents are required for all these 95% cases. Only in 5% of cases documents are required. That documents need to be uploaded. 2 documents are to be uploaded. In case अभी तो facility we are bringing the facility of DigiLocker, एक DigiLocker से हम document pull करेंगे तो एक ही document काफी है. This is what I want to say with regard to the first circular. बहुत अच्छी बात आपने कही रमन जी, और आपने बताया कि कैसे ये इस प्रक्रिया को आपने आसान कर दिया है. एक बड़ा कदम हमारे मेंबर्स के पक्ष में उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए. चूँकि रमन जी ने सब कुछ हिंदी इंग्लिश में बताया तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर्स और व्यूअर्स, उनकी जानकारी के लिए यही जानकारी हम हिंदी में भी सुन लें. और इसके लिए हमारे साथ आज हैं मिस सुरजीत चौधरी जी. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसी बात को, जो प्रक्रिया जो बदली है, उसका लाभ हमारे मेंबर्स कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में वो कुछ बताएं. साथ ही हम अपने जुड़े हुए दर्शकों को ये बता दें कि आज का जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें इन टॉपिक्स पर. इसके अलावा जो आपके सवाल आ रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ,
और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन सवालों के जवाब हम बाद में इस सेशन के बाद भी देते रहेंगे लिखित रूप में। आपके इसी मैसेज के अगेंस्ट में इसी मैसेज को हम जवाब देंगे यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप बाद में भी इन जवाबों को देख सकते हैं। फिलहाल आज के सवाल इन्हीं 3 विषयों पर रहेंगे जो मैंने पहले बताया आपको, जिसमें पहला टॉपिक है कि मेंबर प्रोफाइल में करेक्शन कैसे करें, दूसरा टॉपिक है कि ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र में एम्प्लॉयर के इंटरवेंशन को ख़त्म करने से कैसे प्रक्रिया आसान हुई है, और तीसरा टॉपिक है कि अगर कोई भी मेंबर आईडी गलत तरीके से किसी यूएन में लिंक हो जाए तो उसे डीलिंग करने की सुविधा क्या है और उसे मेंबर कैसे डीलिंग कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक पे थोड़ा सा और जानकारी हम हिंदी में हासिल कर लें मिस सुरजीत चौधरी जी से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। यहाँ पर जैसा कि अभी सर ने काफ़ी डिटेल में बताया आपको, हमारी यही कोशिश है ईपीएफओ की कि हम इस पूरे प्रोसेस को सरल बना सकें। जॉइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस को, मेंबर प्रोफाइल करेक्शन, आप सभी जानते हैं करीब करीब 11 फील्ड्स हैं, जैसे कि मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस, डेट ऑफ लीविंग, डेट ऑफ एग्जिट। ये 11 फील्ड्स हैं जिनका डेटा जो है हमारे रिकॉर्ड्स में मैच होना चाहिए। और पहले के पास्ट एक्सपीरियंस से हमको जो फीडबैक मिला था, ग्रीवेंसेस हमारे पास आ रही थी कि थोड़ा प्रोसेस टाइम टेकिंग था, जहाँ पर मेंबर से, एम्प्लॉयर से और फिर हमारे ऑफिस में 3 स्टेप प्रोसेस हो जा रहा था। उसको ईज़ करने के लिए अब की बार हमने ये सर्कुलर निकाला है, वेरिन लगभग सारी आपकी जहाँ पर अगर मेंबर का यूएएन आधार वैलिडेटेड है तो लगभग सभी आपकी फील्ड्स मेंबर खुद से घर बैठे अपने करेक्ट कर सकता है। ब्रॉडली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है यूएन्स को, एमआईडीज़ को, जहाँ पर आधार लिंक्ड और आधार वैलिडेटेड है आपका यूएएन और वो जनरेट हुआ है 1 अक्टूबर 2017 के बाद में। वहाँ पर आप ये प्रोफाइल करेक्शंस अपने आप से एम्प्लॉय के लेवल से कर सकते हैं। जहाँ पर हालांकि कुछ फील्ड्स हैं, 1-2 सिलेक्टेड फील्ड्स हैं जिसमें कि वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर को एस्केलेट होएगी और फिर ऑफिस में करेक्शन होएगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वर्कर टू इंडियन वर्कर चेंज करना होगा तो ये रिक्वेस्ट ऑफिस से ही अप्रूव होएगी। सेकंड कैटेगरी में जैसा कि सर ने भी बताया, जहाँ पर आपका आधार 2017 से पहले यूएएन जनरेट हुआ है तो वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर लेवल तक एस्केलेट होएंगी। वेरस जो थर्ड कैटेगरी है जहाँ पर कि मान लीजिए आपका आधार, आपका यूएएन ही नहीं है, सिर्फ एमआईडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा यूएएन 2014 में हुआ था लॉन्च, तो जो ओल्ड मेंबर्स हैं, ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट्स के पुराने मेंबर बहुत समय से छोड़ चुके हैं, वो कैटेगरी या फिर डिसीज मेंबर का कैटेगरी जो है उनके लिए रिक्वेस्ट्स फिज़िकल ही अभी आएंगी और आपको अपनी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर को आपको देनी है। हाउएवर अगर आपका एम्प्लॉयर भी अवेलेबल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट क्लोज्ड है, ये वाली कैटेगरी के लोगों की भी हमारे पास काफ़ी शिकायतें आई हैं। ऐसे केसेस में आपको जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ अप्रोच करना होगा। पीआरओ जो हैं आपकी फ़िज़िकल डिक्लेरेशन को उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे और फिर आपका ड्यू प्रोसेस फॉलो होएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो हम ऐड करना चाहेंगे, हमने जो डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और करेक्शंस, उसको भी इलैबोरेट किया गया है। जैसे कि पहले हमारे पास आती थी ग्रीवेंसेस की इलिटरेट मेंबर्स जो हैं उनके केसेस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं रहता था, जो एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट था डीओबी चेंज करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। वहाँ हमने वोटर आईडी,
राशन कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सभी मेंबर्स के पास होंगे, तो डीओबी आपका चेंज हो सकता यानी है। कि मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा सुरजीत जी, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी थी हाँ जी फील्ड सर। में, क्योंकि हाँ हमारे जी जो सर। मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हाँ जी और उनके पास वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास कोई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो डेट ऑफ बर्थ जब चेंज कराने चलते हैं तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं। हाँ जी सर। तो आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है, ईपीएफओ हेड ऑफिस ने एक बड़ा कदम लिया है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं जिनके माध्यम से वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। हाँ जी इससे पहले ये होता था कि डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अभी उनको कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि देने से उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा, और क्या ये डेट ऑफ बर्थ उनके लेवल से ही चेंज हो जाएगा या एम्प्लॉयर के पास जाएगा या ईपीएफओ के पास जाएगा? ये सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। तो सर, जैसा कि अभी रमन सर ने भी बताया था, जी। जिस समय अभी वो फैसिलिटी हमारी डिजी लॉकर से जब हम डॉक्यूमेंट को पुल कर सकेंगे, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, हाँ, हाँ। इट इज़ येट टू बी स्टार्टेड। Okay. तो हमको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या इसकी हम कोई संभावित तारीख बता सकते हैं कि कब तक ये लागू होगा डिजी लॉकर वाला? कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है? सर, क्योंकि ये इनिशिएटिव वहीं से डिजी लॉकर टीम से हमारी कंटिन्यूअस चल रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अभी कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है ज़्यादा आपके फिक्स पास? डेट ऐसा नहीं सर हम कमिट, लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल, और इसीलिए हमने इसमें स्पेसिफाई भी किया है कि एक ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जब डिजी लॉकर लागू हो जाएगा। हाँ जी। उससे पहले 2 डॉक्यूमेंट अदरवाइज 2 डॉक्यूमेंट्स, एक 14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करी गई है। हाँ। और ये शायद सभी के पास, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मेंबर्स के पास मिलेंगे, जैसा कि राशन कार्ड है, ईएसआई का पहचान कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड बाय योर आईटी डिपार्टमेंट है, ऐसे करके 14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो है। 14 डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत लंबी लिस्ट है, और इनमें से पूरी संभावना है कि कोई ना कोई 2 डॉक्यूमेंट मेंबर्स के पास मिल जाएंगे। इस सुविधा का पूरा लाभ उठाइए आप लोग, और जो करेक्शन आपके बहुत समय से पेंडिंग थे, जो नहीं आप करवा पा रहे थे, अब उन्हें आप करवा सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया था जो हमारे यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वीडियो हमने 27 जनवरी 2025 को अपलोड किया है। तो जिन लोगों को ये पूरी प्रक्रिया जाननी है, आज के सेशन में वैसे तो आप जान जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच 2 बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इन विषयों को डील करते हैं, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। किंतु अगर आप इसके बाद भी उस प्रक्रिया को संक्षेप में 5 मिनट के वीडियो में देखना चाहें, 4-5 मिनट के वीडियो में, तो वो आपको ईपीएफओ के सोशल मीडिया चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, सोशल ईपीएफओ पर। और ये वीडियो की डेट है 27 जनवरी 2025। तो यहाँ से जाने के बाद उसको भी देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। फिर चलते हैं हम एक बार सुरजीत जी की तरफ, वो कुछ बता रही हैं। सुरजीत जी। तो हमने बताया आपको लिस्ट ऑफ 14 डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर आपका डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही सभी जो 11 मेंबर प्रोफाइल्स हैं उसके लिए हमने ईच कैटेगरी के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके सर्कुलर के अनेक्शर में अटैच कर रखी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके पास ये निश्चित तौर से एक नहीं तो और ऑप्शंस में से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रही थी, ये काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं अपने ऑफिस से, और आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन जितना जल्दी है वो करवा के, और अपना आप आधार यूएन से अगर आपका लिंक हो जाएगा तो आप कोई भी अपना क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको यूएन एंड आधार का कंप्लीट मैच होना सभी डेटा का, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम ये सर्कुलर लेके आए हैं, और आप इसका मैक्सिमम लाभ उठाएं। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे जो 3 इनिशिएटिव्स थे पिछले दिनों ईपीएफओ के, उन 3 टॉपिक्स को हमने आज लिया है, जिसमें पहला टॉपिक था ईपीएफओ के मेंबर प्रोफाइल में करेक्शन,
जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे दोनों गेस्ट ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने दर्शकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बता दिया है। हमारा दूसरा टॉपिक है आज का ट्रांसफ़र क्लेम्स। ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट्स के लिए जो हम लोग क्लेम, हमारे मेंबर्स क्लेम डालते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं होती थी और संभवतः ग्रीवेंस के सबसे बड़ा कारण ट्रांसफ़र क्लेम ही होता था। अभी इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और वो परिवर्तन क्या हैं, उससे किस तरह से हमारे दर्शकों, हमारे सदस्यों को सुविधा होगी, इस बारे में बात करने के लिए फिर हम चलते हैं एक बार रमन धनशेखर साहब के पास। कृपया संक्षेप में, इन शॉर्ट, प्लीज टेल अस व्हाट आर द चेंजेस यू हैव मेड in transfer of EPF accounts process and how it is going to help the members. Yes. So actually, every member is having one UAN, is supposed to have only one UAN, and that UAN, whenever he changes the employment, that UAN will get linked to his establishment and a member ID will be generated. Suppose the member is working in company A and a UAN is there. So in company A, there will be one member ID generated and he is working for 1 year. When he leaves that company, he goes to the second company. One more member ID will be generated for the second company, whereas the UAN will remain the same. Suppose if he goes to the third company, there will be one more member ID. Now, in the Provident Fund or any kind of social security scheme, this your service has to be added so that you are eligible for the benefits. Like for example, you want to get a housing loan, you need a minimum of 5 years of membership. You want to get an educational loan for your children or any marriage loan, you get a 7 year of membership is required. And also it is a very good financial sense where you are contributing for more number of years and the corpus will be more. Similarly, pension also, if you see, 10 years of minimum service is required for a member to get pension. So for that, members are to join their services and the joining happens through transfer process. What is a transfer process? They will be applying for a transfer application. That application is called Form 13 and that form will be applied. Member can themselves apply in member portal. At the time of applying the member portal, there was an option. Either he will submit this application to the old employer, the previous employer, or to the current employer. So mandatorily this will go to the employer will approve that, then it will go to the office. Because of this process, lot of delay happens because many a times employer, so many cases are there. Suppose if IT companies are there, every year people will be leaving, and big companies may every month so much of people will be leaving that company and joining the other company. So what happens is so much of work gets piled up in the employer level. So there might not be fastly they will not approve it. It creates lot of grievances because member has already joined the other company. He is contributing whereas the old company का contribution नहीं आया है. So in order to streamline that, we have identified, similar to joint declaration, we have identified easy cases where member का UAN is generated after 11017 based on Aadhaar and उनका नीचे जो भी member ID है, इसके लिए अभी employer के पास नहीं जाना है. It's not required to send this application to the employer and directly it will come to the office and office will approve it and money will be immediately, money and the service will be credited to the next account. Similarly, 11017 का पहला एक UAN है, member ID उसके बाद है. इस तरह का cases में भी आधार verified है. ये भी cases इस तरह need not go to the employer. या इसका पहला वाला UAN जनरेटेड है, एक केस एटलीस्ट एक UAN है, इट इज एक मेंबर ID है विच इज बिफोर 11017 बट ऑल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, दीज 3 डेटा इज एग्जैक्टली मैचिंग. ये केस में भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट मेंबर इज सेम ओनली. सो दिस कैन ऑल्सो नीड नॉट गो टू द एम्प्लॉयर. Similarly, UAN itself is before 11017 and this case is also name, date of birth, gender is getting matched. This need not go to the employer. So like that we have put some conditions and we have issued the circular. This circular we have issued on 15th January 2025. This circular is available in our website. Our website is www.epfindia.gov.in. I request all the members and the employers, please see our website because our website is the only authentic source
to get all our update information, all our circulars. एक बार सर्कुलर आप देखेंगे उतना इतना सिंपल जी, ये है। बात हम लोग भी बताते रहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से, सोशल मीडिया चैनल्स पे, कि आप हमें हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से या हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से अप्रोच करें तो आपको आसानी होगी और कोई भटकाव नहीं होगा, कोई भी आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात आपने रमन जी बताई। मैं चाहता हूं कि चूँकि हमारे हिंदी स्पीकिंग मेंबर्स बहुत हैं और जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका नंबर, उनका कारवां बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोग जुड़े हैं लगातार और अपने सवाल हम तक भेज रहे हैं। मैं कुछ सवाल लूँगा, उससे पहले एक बार हम हिंदी में भी जान लें कि ट्रांसफ़र क्लेम में क्या चेंजेस ईपीएफ हेड ऑफिस ने किए हैं, और इसके लिए मैं सुरजीत जी से आग्रह करूंगा कि वो संक्षेप में, शॉर्ट में बता दें कि ये क्या चेंजेस हैं और किन मेंबर्स को इससे लाभ होगा और किस तरह लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा उनको। आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो गोल है वो हमारे मेंबर्स को एम्पावर करना है। हम चाहते हैं हमारे मेंबर्स और हमारे ईपीएफओ के बीच में कोई दूरियां ना रहें। ट्रांसफ़र के प्रोसेस में हमने यह कदम उठाया है अगेन कि हम मेंबर को खुद एम्पावर कर सकें कि उसका ट्रांसफ़र प्रोसेस ईज़ हो जाए, जिसमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत ही ना पड़े। जो पहले ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर से, ऑफिस से रूट होती थी, जिसमें कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था, अब हमने उसमें एम्प्लॉयर लेवल को एलिमिनेट कर दिया है, निकाल दिया है। बट उसके लिए हम हमेशा, जैसे मैंने जॉइंट डिक्लेरेशन के केस में भी बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका यूएन एमआईडी आधार से वेरीफाइड होना चाहिए। ये 4 कैटेगरी ऑफ केसेस हैं जो हमारे 15 जनवरी 2025 के सर्कुलर में हमने डिफ़ाइन करी हैं। इन चारों कैटेगरीज़ में अब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर से नहीं रूट होंगी, वो डायरेक्टली ऑफिस में लैंड करेंगी और ट्रांसफ़र इजी और फास्ट हो जाएगा। आपका 2017 के पास एक यूएन में एमआईडीज़, यूएन हमारी कोशिश यही है कि हर मेंबर का एक यूएन रहे उसके वर्क लाइफ साइकिल में। बट एमआईडीज़ होती है, जैसे वो डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन करता है तो उसको मेंबर को एमआईडी अलॉट की जाती है। तो एक यूएन जिसमें विभिन्न एमआईडीज़ हैं और वहीं उसी में ट्रांसफ़र होना है, वेरिन सभी 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुई हैं, उसमें एम्प्लॉयर की कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज अगर 2 यूएन भी हैं उसके, बट वो जनरेट अक्टूबर 2017 के बाद हुए हैं, उन एमआईडीज़ में ट्रांसफ़र होने में भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका यूएन प्री 2017 जनरेटेड है बट द आधार इज़ लिंक्ड विद योर एमआईडी, उसमें भी आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने क्लेम फाइल किया, आपको चुनना पड़ता था कि ये क्लेम आप किसके माध्यम से आगे ईपीएफओ तक भेजना चाहते हैं, प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉयर के, और फिर उसी हिसाब से वो एम्प्लॉयर के लॉगिन में जाता था और एम्प्लॉयर उसको आगे बढ़ाते थे। कई बार एम्प्लॉयर की मजबूरियों के वजह से, उनकी व्यस्तताओं की वजह से, या यूँ कहें कि वो देख नहीं पाते थे और वो क्लेम आपका पड़ा रह जाता था, फिर आपको उनसे फॉलो करना पड़ता था, तब आके बढ़ता था क्लेम। ये प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, ये सरल हो गई है और आसान हो गई है, तो आप सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। ईपीएफओ इसी तरह के काम करते रहते हैं हम लोग, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हम तक फीडबैक भी पहुंचाएं, और फीडबैक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है ईपीएफओ लाइव में क्वेश्चंस को पूछना। आज के सेशन में इन विषयों पर तो सवाल आ ही रहे हैं, कुछ और विषयों पर आ रहे हैं, हालांकि हम इन्हीं विषयों पर सवालों को लेंगे। फिर भी मैं अंत में कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सवाल, ख़ास तौर से जो इवेंट डिसेबल्ड हैं, डीएक्टिवेटेड हैं, उन पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उन पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें आपको बता पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और देखते रहिए लाइव सेशन। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे सभी नए डेवलपमेंट्स हमेशा वेबसाइट के अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर रहते हैं,
उसमें लिंक रहते हैं, उसमें वीडियोस रहते हैं, और हम आपको हर हफ्ते एक वीडियो देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, सोशल ईपीएफओ पर, जिसमें कोई जानकारी विशेष रूप से देते हैं जो आपकी हेल्प करती है ईपीएफओ से सर्विसेज प्राप्त करने के लिए। जैसे कैसे क्लेम फाइल करें, कैसे एडवांस लें, कैसे आप अपना यूएन मर्ज करें, कैसे आप ट्रांसफ़र कराएं, और किस तरह से आप जॉइंट डिक्लेरेशन भरें, आप डिजिटल सर्विसेज कैसे ले सकते हैं। तो ये सब बातें हम आपको डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो करेक्शन ऑफ प्रोफाइल जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, उस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं 27 जनवरी 2025 को। और जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसफ़र क्लेम पे, उस पे वीडियो आपको इस वीक, इस सप्ताह फ्राइडे को मिलने वाला है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और हाँ, मैं आपसे फिर एक अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके, वो जानकारी हासिल कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। जो लोग जानना चाहते हैं कि जो डीएक्टिवेटेड यूएन हैं, डिसेबल्ड यूएन हैं, उनमें हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। और तीसरा टॉपिक है डीलिंकिंग ऑफ इनकरेक्ट एमआईडीज फ्रॉम द यूएन। यानी अगर कोई अकाउंट नंबर, ईपीएफ अकाउंट नंबर गलती से आपके यूएन में जोड़ दिया जाता है, तो उसको डीलिंग कैसे करें। और मुझे खुशी है कि इस पर कुछ सवाल भी आए हुए हैं, मैं उन सवालों को लूँगा, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या था, ये क्यों ऐसे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी गलती क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। दूसरा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा हो गया है तो उसे कैसे ठीक करें। मैं शुरुआत करता हूं मिस्टर रमन धनशेखर जी से। और देखिए, संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत खुशी है। रमन जी। This mistake we have noticed in many cases, and this is creating a lot of problem. There might be a possibility where the HR person is common for 2-3 companies. Maybe it's a group company where 3 or 4 companies are there, and one HR official, the manager is common, is doing it for 3 companies. So there is a possibility where the member joins in company A, instead of linking that UIN in company A and creating a member ID, the HR person has wrongly linked that UIN to company B. और कंपनी बी में मेंबर आईडी जनरेट हो गया when the member is actually working in company A. This creates a problem because member profile में कंपनी A का नाम आ जाएगा, whereas he is working in company B. Future में when he goes and joins company C, then it becomes a problem and उसका contribution भी problem होएगा. So in order to avoid that, हमने एक we have given a facility to the member where member can log in into the member portal and he can see all the member profile in all the establishments. Suppose if he in one establishment he says this is not my establishment, he can delete that establishment. Many cases we have found out where is date of joining, because the HR person will see that and immediately he will understand some mistake has happened. So he will put the date of joining and date of leaving on the same day, and next day he will put the date of joining of the company C. So but anyhow in the member profile, this date of joining of date of leaving of the same day of company A will be always be there, which has to be deleted, though no contributions are there. So member himself can log into the member portal and they can delete this particular erroneous member ID which is generated in his profile, so that there is no unnecessary this kind of junk data is with him. But there is a catch. Suppose some contribution aa gaya, suppose a contribution has been remitted to ECR after some time, 2 or 3 months, then it becomes a problem. Member cannot do that. For that, now we are bringing a process where this office, it will come to the concerned office to the employer and it will be rectified, because we should also decide about what will happen to the money in that account. Erroneous hai to how it should be accounted. So that also we are looking into it, and a circular will be issued very soon on that. But as of today, wherever contributions are not there, member themselves can log in into the member portal, and any erroneous such cases they can delink. But isme one more point I want to tell, what has come to our knowledge. Members are going to some consultants. So we are in EPFO, we have not authorized any consultants, we have not regulated any consultants. So there might be some self
imposed consultant. They will say that we will do your work. My request is many members are going and giving their UAN number, their password, and because of that, in order to see the profile, they try to put it in some establishment ID and create some problem also. So I request all the members, please always rely on official common service centers, Government of India. There is a Ministry of Information and Technology. Under the control of that ministry, we have common service centers. Please go to that common service centers. Don't go to any unauthorized consultants. Otherwise, you can come to our office. We have our may help you counters. We have our PRO. They themselves will able to help you in doing this. Otherwise, this kind of problems will come. मेरा तो कहना होगा कि आप CSC जाने से पहले EPFO ऑफिस आइए। अगर आपके नज़दीक है, आपको जाने में दिक्कत नहीं है, तो आप EPFO ऑफिस आइए, आपको सहायता ज़रूर मिलेगी वहाँ PRO पर इस तरह के किसी भी मामले में। और इसी बात को हिंदी में बताने के लिए हमारे साथ हैं सुरजीत जी। पहले की तरह दोबारा फिर से एक बार उनके पास चलते हैं। सुरजीत जी, बताइए कि आपने इसमें क्या किया है। तो आप जैसा कि हमारे पास फीडबैक आया, ग्रीवेंसेस आई, बहुत बार केसेस क्या हुआ है कि MID जनरेट की गई है, या तो जैसे सर ने बताया कि एक कॉमन HR पर्सन है, वो 2-3 एस्टैब्लिशमेंट्स का कर रहा है, इस करके उसने एक रॉन्ग MID जनरेट किया और उसको रॉन्ग UN से लिंक कर दिया। या फिर हमारी नॉलेज में ऐसा भी आया कि फ्रॉडुलेंट इस्टेब्लिशमेंट्स जिन्होंने कि मेंबर्स का डेटा कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से कैप्चर करके और MID को मेंबर ID क्रिएट करी गई, जहाँ पर वो कभी शायद उस इस्टेब्लिशमेंट को जानता भी ना हो, कभी वहाँ गया ना हो, और येट उसकी MID को वो जनरेट करके UN से लिंक कर दिया गया, जिससे कि मेंबर खुद हैंडीकैप हो गया है और उसका रीज़न ऑफ एग्ज़िट गलत डाल दिया गया है। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइन MID, शायद आप कोई मेंबर किसी इस्टेब्लिशमेंट में गया, वहाँ पर इंटरव्यू दिया और उसने किसी कारणवश शायद वो अग्री कर लिया कि ज्वाइन करेगा इस्टेब्लिशमेंट, पर नहीं कर पाता है, वेरएज इस्टेब्लिशमेंट ने तो उसका MID जनरेट कर दिया और UN से लिंक कर दिया। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर किसी भी कारणवश उसका MID रॉन्गली लिंक अब है UN से और कंट्रीब्यूशंस तो नहीं आई हैं उस मेंबर ID में, वैसे केसेस में मेंबर ID वो डी लिंक कर सकता है खुद से अपने UN से। अपने मेंबर पोर्टल पे जाएंगे, एक OTP आएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, जिससे वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद वो सर्विस हिस्ट्री का टैब पे जाएंगे मेंबर प्रोफाइल पे, वहाँ पर जहाँ पर भी उन्होंने काम किया होगा मेंबर ने, वो सारी MIDs लिस्टेड होंगी। तो ये पर्टिकुलर MID जो कि एक तरह से जंक है, जहाँ उन्होंने काम ही नहीं किया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस ही नहीं आया है, वो उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने से डी लिंक कर सकते हैं। बट जैसा सर ने बताया, अगर मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आ गया है उस MID में, तो वो उस प्रोसेस के लिए, उस डीलिंकिंग के लिए वो रिक्वेस्ट जो है हमारे ऑफिस में आएगी, उसका भी सर्कुलर हम जल्द ही निकालेंगे। बिल्कुल ठीक आपने बताया। और मैं आपको बता दूं कि बार बार जिस बात का रेफरेंस आ रहा है मेंबर ID, MID क्या है, वो आपका EPF अकाउंट है, जो कि हम कॉमन पार्लेंस में हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा EPF अकाउंट क्या है। तो EPF अकाउंट नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट के संदर्भ में होता है, और जब आप इस्टेब्लिशमेंट बदलते हैं तो एक नया EPF अकाउंट आपका बनता है, लेकिन UN आपका वही रहता है और उस UN से वो EPF अकाउंट नंबर लिंक रहता है। उसी को हम मेंबर ID भी कहते हैं। तो EPF अकाउंट और मेंबर ID सेम चीज़ है, इसको आप समझ लें। कुछ सवाल ले लीजिए। हाँ, हमारा पहला एक one more before that, I just wanted to 2-3 points only. This circular of delinking, we have issued it on 17 January. It is available in our website. This circular we have also enclosed a user manual. So anybody who does not know the process, they can see that user manual, and as per the user manual, you can apply and proceed as directed in the manual, so that you can easily de-link that. And second issue, joint declaration cases, there is a possibility where the establishment is closed, whereas member wants to apply and he can correct the data.
then we have a list of authorized persons, officials, like you can go to the gazetted officer or a bank manager or MLA, MLC, local MP, or he can go to a Tahsildar. Like that, there is a list of officials who are empowered to authorize the claims. Those officials' signature can be obtained in place of the employer and joint declaration can be submitted. Similarly, in the cases of death where member has expired, whereas the data is mismatched between UN and our Aadhaar, then any of the nominee family members can, one of the family members can sign in the place of a member and they can submit to the employer, and it can be done by the employer themselves in the login. Otherwise, it will come to our office and we will do it in our office. So, this I wanted to just tell. ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर एम्प्लॉयर नहीं है, कंपनी बंद है, तो वो क्या करें अगर उनको कोई करेक्शन कराना है। मैं फिर आपको बता दूं कि हमने ईपीएफ प्रोफाइल करेक्शन पर एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो हमने 27 जनवरी 2025 को अपने यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ पर पोस्ट किया हुआ है। इसी तरह हमने डीलिंकिंग ऑफ यूएन, डीलिंकिंग ऑफ एमआईडी पर भी एक वीडियो बनाया है, जो 31 जनवरी 2025 को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। तो आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि रमन जी ने बताया कि एक पूरा एक प्रोसेस फ्लो हमारे सर्कुलर के साथ दिया गया है। आप उसको पढ़ना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहें तो आप बहुत ही मनोरंजक तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ पर जाना है और वहाँ पर ये वीडियो देखना है। 3 से 5 मिनट के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कैसे आप डीलिंग कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं डीलिंकिंग पर, वो हम ले लेते हैं, फिर और विषयों पर जो सवाल हैं वो भी लेंगे, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे एक अलग से विषय की। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जो हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो हमारी टीम उस वीडियो को पिन भी कर रही है उस सवाल के साथ। तो आपको अपने सवाल के नीचे ही उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सुरजीत जी, आपके लिए एक सवाल है कि ये शिवाजी चौधरी हैं, ये पूछ रहे हैं कि डीलिंक्ड मेंबर आईडी इन यूएन बट नॉट गेटिंग डीलिंक्ड इन ईपीएफओ पासबुक, वाई? मतलब इन्होंने यूएन में तो डीलिंक कर दिया है मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ईपीएफओ पासबुक में। क्या इसका कोई कारण बता सकते हैं क्या? तो अगर यूएन में डीलिंक हो गया है तो फॉर ऑल पर्पसेस इट इज़ एज गुड कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। वेर एज मेंबर पासबुक में उसका एंट्री, जो मैं समझ पा रही हूँ, शायद सिर्फ एंट्री होगा, उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो मे बी हम अपना बैक एंड टीम से ये चेक कर सकते हैं, अगर वो भी साइमल्टेनियसली वहाँ से इरेज हो सकता है तो ये एक टीदिंग इशू शायद हम फ्लैग कर देंगे। बट आप ये रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि उससे आपकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट पे कोई इशू नहीं आएगा। No, what we can do, one more, it's a good point, somebody has raised a very good point, Shivaji ji. If you could take your copy of the passbook and that can be emailed to our email ID. We wanted to examine that case. Our email ID is so.wsu so.wsu@epifindia.gov.in। आप सब्जेक्ट में लिख लीजिए लाइव सेशन ऑन, आज का डेट लिख लीजिए, लाइव सेशन ऑन 11 दैट इज 11th फरवरी। जी, बहुत अच्छी बात आपने बता दी कि जो इशू है इसको फर्दर एग्जामिन करके हमारी टीम, हमारे ऑफिसर्स उसको रिजॉल्व भी करेंगे। साथ में अगर कोई और इशू है तो उसको भी देखेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने इशू को थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए और उसका एक प्रिंट, एक पीडीएफ फाइल पासबुक की उसमें लगा दें। हमने ईमेल आईडी हम आपके सवाल के साथ में मेंशन करे दे रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो उसको आप देख सकते हैं। so.wsu@epifindia.gov.in। वो हमारी टीम वहाँ पे मेंशन कर देगी वो ईमेल आईडी। और सब्जेक्ट विल बी लाइव सेशन ऑन 11th फरवरी। जी, ये ज़रूर ध्यान रखें, वो लिख दो, हमारी टीम लिख देगी क्या सब्जेक्ट उसमें लिखना है, तो सब्जेक्ट वो मेंशन करें जिससे कि उस पर ध्यान, उस मेल पे ध्यान स्पेशली जाए
और उसको स्पेशली टेकअप किया जाए। प्रांजलि बोंडे हैं, ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी हाउ टू करेक्ट द रॉन्ग सर्विस हिस्ट्री मेंटेन्ड इन द EPFO वेबसाइट। रॉन्ग सर्विस हिस्ट्री, रमन सर कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? Yes, wrong service history, which what I understand, either the date of joining is correctly not captured or date of leaving is not correctly captured. In those cases also, through the joint declaration, you can correct. Only is that that contributions should be matching with whatever the date of joining and date of leaving. So in those cases, if it is there is a mismatch, it will go up to the office for correction. If it is not exactly matching, then member you yourself can correct it in the member portal. Hope it is clear to you. जी, असल में जो सवाल हैं वो जितने क्लियर होंगे उनका जवाब उतना ही क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए सवाल करते समय अपनी भाषा पर, अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दें और सवाल को स्पष्ट रूप से पूछें कि आप जानना क्या चाहते हैं। अगर आपका सवाल का सही जवाब मिल गया हो तो ठीक है, अन्यथा आप दोबारा अपने सवाल को फ्रेम कर सकते हैं। एक सवाल है श्री हर्षा का, ये कह रहे हैं कि आई डोंट हु क्रिएटेड, आई नो, शायद छूट गया, आई डोंट नो हु क्रिएटेड PF फॉर मी, आई कांट डीलिंक, इट इज़ फर्स्ट कंपनी। ये पहली कंपनी है और इसको हम डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं और एवरी कंपनी इज आस्किंग ज्वाइनिंग रिलीविंग लेटर फॉर दैट कंपनी। Okay, that is actually a problem. So what you can do is I think any contributions are there in that account. I am not clear. If there is no contribution, then you can go to the member portal. Just see whether member portal you are able to log in, and because once you are able to log in the member portal, the OTP everything will be coming based on the Aadhaar based mobile number only, which means you can access your member portal and there you can delete it. Suppose if you have any problem or any contributions are there, then I will suggest you please take the screenshot or whatever and send it in so.wsu putting this live session, because this we will examine it and we will get back to you. हाँ, बिल्कुल इसी तरह के कुछ और भी सवाल हैं जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कंट्रीब्यूशन आने की वजह से वो उसको डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मामलों में उन्हें क्या करना है, ये थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। आप यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज वी आर फाइनलाइजिंग द मोडालिटीज ऑफ हाउ टू हैंडल दैट एरोनियस कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज ये तो द मनी हैज कम इन द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड यू हैव टू कंफर्म दैट दिस इज नॉट माई MID or the member ID. Then what will happen to that contribution? That contribution, we have a special reserve fund, we want to transfer to that fund. So there we are just finalizing modalities. Very soon we will be issuing the circular for that. Then a manual also will be enclosed, and with that you can same thing you can do that whatever you are doing for the other cases. Just bear with us for some time. बिल्कुल, आपने बिल्कुल पूरी बात बता दी। और मैं आपको ये बता दूं कि रमन सर ने बताया है कि आप इस तरह के मामलों में जहां पे कंट्रीब्यूशन कुछ आया हुआ है, उससे मुश्किल ये होती है कि पहले ये जानना पड़ेगा कि ये कंट्रीब्यूशन क्यों आया है, सही है, गलत है। अगर गलत है तो उसका क्या किया जाएगा, अगर सही है तो उसको डीलिंग क्यों करना है। तो इन इश्यूज़ को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। आप लोग अपने जो इश्यूज़ हैं इस तरह के, उनका स्क्रीनशॉट लेकर और अपने इशू को डिस्क्राइब करते हुए एक ईमेल हम लोगों को भेज दीजिए। जो ईमेल आईडी आपने बताई है, हम आपके मैसेज के अगेंस्ट में उस ईमेल आईडी को मेंशन कर रहे हैं, हमारी टीम मेंशन कर रही है, और आप ईमेल ज़रूर करिए हमको, हम एग्ज़ामिन करेंगे और आपके फीडबैक से ही हम अपनी प्रोसेस को बेहतर बना पाते हैं। तो एक सवाल और लेते हैं कि ये कोडेंडरम PV हैं, ही इज़ आस्किंग कि हाउ टू करेक्ट द डेटा such as member name, father's name, date of joining when member ID is not activated and Aadhaar not seeded due to mismatch of data. ये बहुत important सवाल है। That is what in joint declaration circular, if you see, this is category C, because you will not be even able to log in because data is not matching. So physical joint declaration you have to prepare, you have to submit to your employer. Employer also will sign it and it will come to the office. In cases many cases employer themselves can file it in their employer login. It will come through online mode only to our office. So nothing to worry. Please fill that joint declaration proforma which is available in the circular itself. Yes, 16th circular में last page is the proforma. This proforma आप fill कीजिए and that you please give it to your employer. Employer इसका attach करके document को, it will be
uploaded into the website and we will immediately correct it after verification. और जस्ट इन केस आपके एम्प्लॉयर भी अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे जो भी हमारा रीजनल ऑफिस रहेगा, लोकल ऑफिस, आप वहाँ जाएं, पीआरओ पे अपनी रिक्वेस्ट दें, एक ये फॉर्मेट में आपको अपना डिटेल्स भरना होगा, वो वहीं पर अपलोड करेंगे हमारे पीआरओ और ऑनलाइन उसका करेक्शन ऑफिस करेगा। देखिए सुरजीत, उससे पहले उनको अटेस्ट कराना पड़ेगा, शायद अटेस्ट कराना पड़ेगा, जी। जैसे सर ने बताया। तो पहले वो भर लें। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स हैं हमारी जिनसे आप अटेस्ट करवा सकते हैं। पहले उसे भर लें, भर के उसको अटेस्ट करा लें, जो हमारे ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैं, और उसके बाद फिर आप लेके जा सकते हैं हमारे ईपीएफ ऑफिस में, पीआरओ में, और उसको रिसीव करवा सकते हैं। उसके आगे की प्रोसेस ऑनलाइन हमारे ऑफिस द्वारा की जाएगी। देखिए, एक सवाल बैंक अकाउंट के अप्रूवल पर भी आया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिए हमारा चैनल। उस चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं और हर सब्जेक्ट पे हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए, आज हम जो ना दे पाएंगे आपको, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने सहकर्मियों को बताइएगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है, ईपीएफओ का यूट्यूब चैनल है, जिस पे बहुत सारी जानकारियाँ आपके काम की हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। एक सवाल हम लेते हैं प्रांजलि बोंडे का। हाउ डू आई चेंज माई डेट ऑफ लिविंग इन ईपीएफओ? विल आई बी एबल टू डू इट और एम्प्लॉयर? हाउ मच टाइम विल इट टेक? डेट ऑफ लिविंग चेंज करनी है, डेट ऑफ लिविंग चेंज करना है। Suppose the contributions are exactly matching, date of leaving you can change it yourself only. It need not go to the employer. But in cases if the contributions are not matching, then it goes to the employer, and in some cases it will come to the office also. If you see the joint declaration, date of leaving mein, what we have told is contributions matching is straight away employee. If contributions are not matching in category A, it will come to the office. If it is category B, it will, if the contributions are matching, it will go to the employer level, and at the level of employer itself, it will be approved. It need not come to the office. If contributions are not matching, it will come to the office. So it's very clearly written in the circular, and it's instantaneous. आपका contribution match हो गया, and you are going to approve it. You can approve it immediately, instantly. You will be able to see the data immediately getting corrected. आपको देखना आप कौन से कैटेगरी में है, यानी आपका जो यूएएन है वो कब जनरेट हुआ है, 1 अक्टूबर 2017 के बाद हुआ है, तो आप कैटेगरी ए में हैं जहां आप खुद कर सकते हैं, और अगर उससे पहले हुआ है और येट वो वैलिडेट हो चुका है आधार से, तो वो एम्प्लॉयर के पास जाएगी रिक्वेस्ट। देखिए, फेसबुक पे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैंने आपको शायद शुरू में बताया नहीं कि हमारा जो आज का लाइव सेशन है वो यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टा पर भी है। तो फेसबुक के भी कुछ सवाल हम लेंगे। अभी जैसे ईमेल आईडी आपने बताया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक सज्जन हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईमेल आईडी भेजी हैं बट उस पर जवाब नहीं आया। तो मैं कहूँगा कि आप आज के लाइव सेशन का रेफरेंस सब्जेक्ट डालते हुए फिर से ईमेल आईडी करिए, आपको ज़रूर जवाब आएगा। और आज के लाइव सेशन में जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही होगा। देखिए, एक नया सवाल और लेता हूं मैं। एन श्री नंदा कुमार हैं, ये कह रहे हैं कि ज्वाइंड द कंपनी इन 2023, देयर यूएन एंड पीएफ वर क्रिएटेड, 25 days later got the mail that the company was fake. We also filed an FIR on the company. I didn't even take a 1 month salary, the PF created. अब ये चाहते क्या हैं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मामला तो वही डीलिंकिंग वाला ही है। तो कुछ इनको गाइड कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? No, but one thing I don't want to, I want to clarification. You have joined the company means then when you found out that this company is fake, because you have joined the company, then after 25 days then you are saying company is fake. That I am not able to understand. Because if it's a fake company, then you might not have joined, then the company itself is not in existence. Because many a times members simply they go and to some computer agency and they are just doing, intentionally they do this also. So that will be a problem, because that is a criminal offense, and systems you have to do it correctly. You cannot create any fake employment. So that you please you just verify that, and if at all if you have any genuine issue, please write a clear data and send that email. I told you so.wsu में लाइव सेशन रेफर करके आप अटैचमेंट करके हमको मेल भेज दीजिए, उसको एग्जामिन कर देंगे।
जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं या जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए आपको ईमेल आईडी दिया गया है। उस ईमेल आईडी पे आज का लाइव सेशन का रेफरेंस देते हुए अपना सवाल ज़रूर भेजिएगा विद डिस्क्रिप्शन। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, संदीप कुमार TGW हैं ये बोल रहे हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सेंट बैक टू एम्प्लॉयर बाय EPFO, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कैंसिल कैसे करें? मेंबर एंड एम्प्लॉयर डन हिज रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही इस रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट कैंसिल कैसे करें, ये पूछना चाहते हैं। ये बात तो, ये सवाल तो और भी लोगों का होगा कि जिन्होंने ऑलरेडी जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट डाली हुई है और जो अप्रूव नहीं हुई है, पेंडिंग है EPFO में या एम्प्लॉयर के पास, अब वो मान लीजिए उन केसेस में आपने सुविधा दे दी कि वो खुद कर सकते हों, तो उसको रिजेक्ट करें कैसे करें, कैसे हटाएं उसको? जी। See, whatever new facility we have developed, that was developed on 17th January. Circular was issued, and 17th January this facility was deployed. So, any cases which were already pending in various stages, mein, suppose the cases are pending in employer level or office mein, it has come, it is at the pending at the level of the dealing assistant. The member themselves can delete that particular request and resubmit this request in the new facility, where maybe the change can be done by the member themselves. Suppose DA process karke, after the processing it has gone to the various levels, then you have to wait for some time because it will be either approved or rejected. Accordingly you can decide. Suppose if it is come back to the employer, then you can delete it, that request, because then from employer I think it will not come to the member as of today, but the member can delete it. If you are not able to delete it, any kind of message is coming, please take the screenshot and send it, attach it in that email and send it to us in that so.wsu@EPF India, subject may live session, just write it, and please also give your mobile number under your name so that we need any further information, we will call you also. इसमें थोड़ा सा अगर सुजीत जी हिंदी में बताना चाहें इस विषय पर कुछ। वो सभी रिक्वेस्ट जो कि 17 Jan 25 से पहले पाइपलाइन में पेंडिंग थी, एज एन या तो वो एम्प्लॉयर के पास लेवल पे या ऑफिस में किसी भी लेवल पे पेंडिंग थी, तो उनको हमने एम्प्लॉई को ही सुविधा दी है कि वो उस रिक्वेस्ट को अपने एंड से डिलीट कर सकते हैं और अफ्रेश नए प्रोसीजर के हिसाब से वो अपना रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ इशू एम्प्लॉयर के लेवल पे या फिर आपके लेवल पे आ रहा है जहाँ पर वो रिक्वेस्ट नहीं डिलीट हो पा रही है, और तो आप हमें प्लीज़ स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए। जो रिक्वेस्ट ऑफिस में पेंडिंग थी उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो या तो एक्सेप्ट होंगी, अप्रूव होंगी, या फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगी। रिजेक्ट होने के बाद आप फ्रेश रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और लेते हैं, जेनी जोस का है कि सर वाई आर मेंबर्स हु हैव जनरेटेड यूएन बिफोर 1 October 2017 नॉट अलाउड टू डू चेंजेस इन द यूएन एंड सीड आधार विदाउट एम्प्लॉयर, एंड व्हाट इफ कंपनी हैज़ गॉन इनटू लिक्विडेशन? तो इसका लॉजिक क्या है, जो आपने क्राइटेरिया बनाई है उसका लॉजिक जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, लोगों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे। देखिए, जो ये प्रोसेस था यूएन जनरेशन का 2014 से स्टार्ट हुआ, 17 ऑनवर्ड्स सभी यूएन जो जनरेट हुए वो आधार के बेसिस पे जनरेट हुए हैं, यानी कि जो आधार का डेटा था वो यूएन में एज इट इज़ एम्बेडेड है। वेराज जो 2014 से 17 के बीच में आपका यूएन और आधार पैरेलल रन कर रहा था। ज़रूरी नहीं है कि जो आधार का डेटा था वही आपका यूएन में भी वो एम्बेड हुआ है, तो डेटा वेरिएशन उन केसेस में हो सकता है। बट 2017 क्योंकि वो जनरेट ही आधार के बेसिस पे हुआ है, सो वो फुल प्रूफ है। दैट इज़ वाई हमने एम्प्लॉई को ही एम्पावर कर दिया कि आप अपने सेल्फ से रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। वेरएज जो 2014 से 17 के बीच के केसेस रहे हैं उसमें एक
एडिशनल लेवल ऑफ वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण वो एक फर्दर स्टेप या तो एम्प्लॉयर तक या फिर फर्दर ऑफिस के लेवल तक आने की उसको ज़रूरत है। तो मैं उसके पीछे लॉजिक बेसिकली ये है कि आपके अकाउंट को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना अकाउंट के फ्रॉडुलेंट यूज़ का, अकाउंट में से फ्रॉडुलेंट विड्रॉल के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए ये सब किया जाता है। इस तरह की सुरक्षा गतिविधियाँ इस तरह की जाती हैं, इस वजह से की जाती हैं। प्रकाश कुमार हैं, एक ट्रांसफ़र इशू है इनका। रमन जी आप इसका देखें कि जवाब क्या होगा। आई कुड नॉट ट्रांसफ़र माई PF अमाउंट फ्रॉम माई फर्स्ट एम्प्लॉयर टू सेकेंड एम्प्लॉयर। नोट, since I am not working at any company at the moment and PF amount is not credited to my account anymore। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो कर सकते हैं ना ये? नहीं, you have to, as per the new circular which we have issued, suppose you are coming in that category where your Aadhaar is generated after 1/10/17, or if it is before 1/10/17 and your name, date of birth and gender is exactly matching, you yourself can transfer it. इसमें you are not able to do that, then this application will go to the employer, that's it. So you can always file the application, there is no wrong or bar in not filing the application. So please file the application, it will be processed either at your level if you are coming in this criteria, otherwise it will go to the employer and the employer will approve that and it will come to the office and we will approve it. Nothing to worry on that. Okay. तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा, सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। एक सवाल और लेते हैं, संजीव भार्गव जी का है। ये कह रहे हैं कि अनेबल टू गेट माई PF, मैनी टाइम्स ट्राइड बट स्टिल डिनाइड बिकॉज एग्जिट डेट वॉज अपडेटेड इनकरेक्टली बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड PF डिपॉजिटेड टिल June 2015। नाउ माई पास्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज bankruptcy and nobody is there in past organization, filed joint declaration but still waiting, please revert। तो ये इनको एग्जिट डेट में चेंज करना पड़ेगा, और एग्जिट डेट में चेंज करने का तरीका हमने बता दिया, इनको कुछ और बताना चाहिए। comes under category C because employer is no more available, liquidate हो गया, तो आपने physical joint declaration you might have submitted, if it is pending in the office it will be in the first, I mean it will be coming in the queue like first come first serve करके they will be getting cleared। थोड़ा just wait for some time। Suppose if it is not getting cleared, let us say in 15 days time or maximum 1 month time, please refer to us, so.wsu, or you can file a grievance also, we will personally look into it। एक सवाल और लेते हैं। प्रवत कुमार राणा हैं, ये कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, वन ऑफ माय UN नंबर क्रिएटेड इन 2009 and I left my service on 2013, but the agency not created the date of joining and date of exit होगा ये, bank account and Aadhaar linked this UN number, but I am unable to withdraw money due to date of joining not entered. Agency is also not traceable by me, so please give me solution how I withdraw money from UN number। तो इनको date of exit और date of joining दोनों का issue आ रहा है। Date of joining they should have entered it, but this is very curious actually, because date of joining will be there, because date of joining is your appointment and the day you are joining it, they would have entered it, only then the contributions would have started, but I do not know why they have not entered। And you are also saying date of exit if you have not entered, that is one of the common issues, but this let us examine this issue, please आप इसका you attach the documents and send it in that email ID, we will examine it। बिल्कुल, तो आप ईमेल करें हमको, हम एग्ज़ामिन करेंगे उसको। एक हैं बनाला अमरनाथ हैं, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया अपना कि इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया, एक कंपनी को ज्वाइन किया सितंबर 19 में और मई 21 में छोड़ दिया। दूसरा ज्वाइन किया इन्होंने जून 21 में, यानी कि उसके अगले महीने में, और जुलाई 21 में छोड़ दिया। फिर उन्होंने तीसरी कंपनी को ज्वाइन किया, नहीं फिर उसका एक कंपनी को फिर से ज्वाइन किया, उन्होंने रीज्वाइन कर लिया सितंबर 21 में। However, company A continued contribution under my old member ID, causing an overlap issue। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के इश्यूज और भी लोगों के साथ हो सकते हैं। Yes, 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 that is actually a problem। See, your member ID is unique for a service। Suppose first company you have joined, उसका date of joining and date of leaving, same company you are again joining it, another member ID should be created in the same company। You should not
the company has made a mistake by contributing in the same member ID. So that is a problem. So they should create a new member ID, then transfer that old whatever funds are there to the new member ID. Only then this problem will be sorted out. जो कंट्रीब्यूशन जिसमें आया है उसको डीलिंग करने के बारे में एक जीएस टैग है, वो कई बार कह रहे हैं कि इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए, तो उसके बारे में आपने बता दिया है कि उसको एग्जामिन किया जा रहा है, उसको कैसे किया जाएगा और उसमें जो पैसा आया हुआ उसका क्या होगा। इन सब बातों को एग्जामिन करने के बाद फिर ये सुविधा आपको दी जाएगी। अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और इसको समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक सवाल जो बार बार हर बार आता है, कुछ लोग ग्रीवेंस से बहुत परेशान हैं लोग बहुत समय से, अच्छा नहीं लगता है कि उनके सवालों को मैं देखता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप उनको आज ये बता के जाएँ, अगर संभव है तो उनको ये एश्योरेंस दे के जाएँ कि उनके समस्याओं का क्या होगा, और वो है डीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट यूएन। जो डीएक्टिवेटेड यूएन हैं उनको वो कैसे यूएन को एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि आज का टॉपिक ये नहीं है, फिर भी मैं रमन धनशेखर जी से इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ईपीएफ मुख्यालय में इस विषय को वो ही देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इस आज की उनकी उपस्थिति से कुछ लाभ लिया जाए और आप लोगों तक ये सूचना पहुँचाई जाए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अंत में मैं इस विषय पर कुछ बात करवाऊँगा, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और कब तक ये सुविधा होगी, कैसे होगा ये। See, actually this UAN was deactivated only to help you, because there was some kind of attempt for some fraudulent, either there was an attempt to fraud or somebody has tried to access your account. So you know that whenever you are even doing any banking transactions, there was some kind of suspicion is there, then immediately that bank account will be temporarily blocked, then you have to go to the bank to again reactivate it. Similarly, there was some kind of suspicious transactions are suspected in your account, either through some kind of fraudulent, otherwise there might be some ABRY benefit involvement. So there was some reason to believe there was some kind of fraud. That is why this was deactivated, so that the genuine, in case there is genuine member here, from their account the money should not be withdrawn by any fraudsters. That is the idea. But a detailed standard operating procedure has been put in place in the month of December 2024, 23 in fact 1 year before, and after that deployment also happened in July. There is a functionality where all the offices, this functionality they are deactivating the cases one by one based on the grievance raised by you, because we should also know that the genuine member is raising the grievances. So in the standard operating procedure which is available in our website, we have requested to raise a grievance in EPF IGMS. आप grievance raise करेंगे तो based on that it will be triggered and verification के बाद it will be deactivated. आप उसको try कीजिए. And we are also trying to make this entire process more and more tech savvy, and we are putting some logic where we will want to bulk deactivate based on some cases. So that logic is getting finalized very soon. So many cases will be deactivated, some 1 lakh cases will be deactivated very soon. Other cases you can put a EPF IGMS grievance, and based on your grievance it will be deactivated soon. तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का, जो बहुत सारे सवाल आज के विषय से इतर डीएक्टिवेटेड अकाउंट पर आ रहे थे, डीएक्टिवेटेड यूएन पर, आपको जवाब मिल गया होगा। कुछ मुश्किल ये होती है कि इस तरह के सेशन में कि कुछ लोग जो हैं वो अपने सवाल को एक तो बहुत बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो खो जाते हैं और उनके जवाब रह जाते हैं, और कुछ लोग अनावश्यक सवाल पूछते हैं, कुछ लोग अनावश्यक कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट सवाल छूट जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेशन के बाद भी हम आपके सवालों को दोबारा देखेंगे और यहीं पे इसी चैट बॉक्स में आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, जिनके सवालों के जवाब अभी हम इस सेशन में नहीं दे पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे दर्शकों का सवालों का जवाब दिया। आप दोनों ने समय निकाला, और इस तरह के सेशंस का मेन मकसद ये रहता है कि हम दर्शकों के साथ, हम अपने मेंबर्स के साथ सीधे जुड़ पाएँ।
जुड़ने के अलावा ये भी रहता है कि हम जान पाएँ, उनसे फीडबैक ले पाएँ कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो आप तक डायरेक्टली पहुँचे। ये वीडियो आपके पास आगे भी रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो बना रहता है, तो अगर कोई किसी से छूट जाता है लाइव सेशन तो इस वीडियो को पुनः देख सकता है। आज का संवाद यहीं तक। हम मिलेंगे अगले माह दूसरे मंगलवार को फिर से। देखते रहिए EPFO लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, वणक्कम। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।